एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ सच्ची सुची शख्सियत ਦੇ मालिक ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰਨੀ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਰਸ਼ੀ, ਐਕਸ MLA ਬੁਢਲਾਡਾ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ, ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ, ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ, मनप्रीत सिंह अर्शी, सनवीर सिंह, हरमनप्रीत सिंह, मनसीरत कौर, सवरीत कौर ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 20 ਮਈ 1939 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਵਿਖੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸਰਦਾਰਨੀ ਦਾਨ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸੁਗੜ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਮਿਡਲ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਤੋਂ, ਉਪਰੰਤ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਨ 1957 ਵਿੱਚ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਸਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 1960 ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਖਲਾਸੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 31 ਮਈ 1997 ਨੂੰ A ਗ੍ਰੇਡ ਪਲੱਸ ਸੁਪਰ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਜੀ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਰਹੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਔਕੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕ ਵੰਨਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਚਾਹੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਰੂਟੀਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰੀ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਤੌਰ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਬਕਾ MLA ਬੁਢਲਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੀਚਰ ਹੋਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ। ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ 24-25 ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾਮਾਦ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਮੋਹ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਦੋਤੇ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਵੀ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮਨਸੀਰਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਵਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।
हजूर अरदास बेनती है सतगुरु जी, जिहा जी लिखिया ते आ हुक्म कमाए, कलिया नानका सदे उठी जाए महावाक अनुसार। स्वर्गवासी भाई राम सिंह अपने स्वासां की पूंजी नूं भोगदियां होइयां संसार की यात्रा नूं पूरी करदियां होइयां अकाल चलाने कर गए सन। उन्हां दी रूह की शांति दे वास्ते उन्हां दे समूह सारे परिवार ने रल मिल के आप जी दे पावन अस्थानां ते प्रार्थनाई शब्द कीर्तन करवाए। बाणी बड़ी सुनी सचखंड विखे प्रवान करनी, बाणी का भाव पिछड़ी हुई आत्मा नूं शांति बख्शनी, पिछे परिवार नूं भाणा मरण का बल बख्शना। सतगुरु जी आपकी बार बख्श बंदे का बाहर ना भजल फेरा, पिछड़ी हुई आत्मा नूं आप जी दे चरणों का निवास बख्शना, पिछे परिवार नूं भाणा मरण का बल बख्शना। समूह परिवार ते मेरे पर हथ रखना, कृपा करनी। सतगुरु जी समूह परिवार वालों आप जी रेशमी माले तिल फरमाया अरदास होइयां कृपा करके प्रवान करो। सेवकां दे लोक परलोक पढ़दे कजने भंडारे भरपूर रखने, आई संगत दी हाजरी तिल फल भेटा प्रवान करनी। समूह परिवार वालों कड़ा प्रसादी देख सज के हाजर है, दर परवान होवे दर परवान होया प्रसाद साथ संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो। अपने अलाही हुक्मनामे बख्श के संगत नूं प्रताड़ित करो, हुक्मां ते चलण दी समर्था बख्शणी। से प्यारे मेरे जिन्हां मिलिया तेरा नाम चित आवे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाण सदा भला। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आसा मनसा सगल त्यागै, जग ते रहै निरासा। काम क्रोध जिह बरसै नाहन, तिह घट ब्रह्म निवासा। गुर कृपा जिह नर को कीनी, तिह इह जुगत पछानी। नानक लीन भयो गोबिंद स्याम, ज्यों पानी संग पानी। गुर कृपा जिह नर को कीनी, तिह इह जुगत पछानी। नानक लीन भयो गोबिंद स्याम, ज्यों पानी संग पानी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। सानू महान गुरबाणी का उपदेश है, जिन्हां दा ये जग सुहेला हुंदा है, अगला परलोक भी सहेला हुंदा है, जिन्हां दा लोक सहेले। कामरेड राम सिंह जी अपने जीवन का बंध पूरा करके तीन पद्धरां ते अपने परिवार की पद्धर ते, अपने कर्म भूमि की पद्धर ते और समाज की पद्धर ते विचरदियां एक विलक्षण ते वखरा योगदान पा के इस समाज तो रुखसत होए ने, जिथे बहुत ही औखियां हालतां विच उन्होंने उन्हां समय विच अपनी पढ़ाई पूरी की। जदों साडे इस इलाके विच 10वीं पास कर जाना एक बहुत बड़ी गल होंदी सी। 1960 विच वो सर्विस विच आए, रेलवे विभाग विच भर्ती होके उत्थे जिथे अपने परिवार प्रति अपने फर्ज अदा किए, उत्थे नाल दी नाल अपने विभाग प्रति अपने काम प्रति भी उन्हां दा जो समर्पण भावना सी वो विलक्षण किस्म की सी। सुपर फास्ट रेलवे के ड्राइवर तो रिटायर होके
भी उन्होंने जिहड़ी जिंदगी सी वो लोगों ने सेवा में गुजारी, अपने परिवार नूं उन्होंने बुलंदियां ते पहुंचाया। उन्होंने तिन्ने बच्चे, एक बेटी ते दोने बेटे समाज में बहुत ही सत्कारयोग स्थान रखते हैं। उन्होंने अपने बच्चों नूं पढ़ाई भी पूरी कराई ते उस तो बाद रोजगार से भी लाया। साडे भैन जी दलजीत कौर और उन्होंने बेटे नवतेज सिंह ते नवजीत अध्यापक हैं। सिक्ख्या की जी विद्या का चानण उन्होंने समाज में वंडिया। उन्होंने बहुत ही नेड़ले रिश्तेदार पुत्रां तो वध प्यारे कामरेड हरदेव अर्शी होरां दा भी समाज में जो योगदान है वो साडे किसी तो भुलिया हुआ नहीं। इस परिवार के इन्ने बड़े समाज में रुतबे कारण समाज दियां बहुत बड़िया बड़िया शख्सियतां इत्थे हाजिर ने। इकल्ला इकल्ला व्यक्ति एक पूरी संस्था है। बेशक सारा के नाम लेने मुमकिन नहीं, सारा की हाजरी परमात्मा हाजिर नाजिर जान के परमात्मा के चरणों में लगी है। पर फिर भी कुछ शख्सियतां जो इत्थे आके अपनी हाजिरी लगा के चलिया हुई ने, मैं उन्होंने नाम लेने बहुत ही मुनासिब समझांगा। इस तो पहला साडे पंजाब के वित्त मंत्री सरदार मनप्रीत सिंह बादल इत्थे अपनी हाजिरी लगा के गए ने। उन्होंने नाल श्री आजम गर्ग जी चेयरमैन प्लानिंग बोर्ड ते मोहन लाल झुंबा जी चेयरमैन मार्केट कमेटी भी उन्होंने नाल हाजिरी लगा के गए ने। श्री चंजी लाल जी गर्ग साबका मंत्री, श्री स्वरूप चंद जी सिंगला साबका पार्लियामेंट सकत्तर, श्री अशोक कुमार जी सीनियर डिप्टी मेयर नगर निगम बठिंडा, सरदार हरपाल सिंह साबका कोआर्डिनेटर सिक्ख्या विभाग, श्री बलकरण सिंह बराड़ प्रधान कुल हिंद किसान सभा, श्री कृष्ण चौहान सकत्तर CPI मानसा और कामरेड जगरूप सिंह जिहड़े स्टेट के आगू ने CPI दे वो भी आ रहे हैं, जाम में फसे ने। ये सारिया शख्सियतां तो अलावा जो राम सिंह होरां दा एक कार्य खेतर रेलवे सी, उन्होंने रेलवे के साथी बहुत सारे इत्थे हाजिर हुए ने। साडे कोले बुलारे असीं सीमित रखांगे, पर उन्होंने वख-वख जिहड़ियां कर्म भूमियां ने उत्थों बुलारे असीं बुलावांगे। तो मैं सब तो पहला बेनती करांगा सरदार जोगिंदर सिंह जिहड़े सैकटरी साबका सैकटरी ने उत्तरिया रेलवे मजदूर यूनियन के, कि वो मंच ते आउण ते अपने पिछले साथी नाल संखेप विच अपनी यादां भी साझियां करन ते उस अवजड़े इंसान नूं आके शरदा दे फुल भेंट करन। सरदार जोगिंदर सिंह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। राम सिंह जी बारे मेरे तो पहला बहुत कुछ दसिया है, पर वो साडे रेलवे के पितामह सन। उन्हों का जन्म 20 जून 1939 के विच होया सी। 6/6 1960 के विच उन्हां दी अपॉइंटमेंट जिहड़ी है बतौर क्लीनर टिकटी तुगलकाबाद च हुई सी। वो 2 साल सवा 2 साल उत्थे नौकरी करके ट्रांसफर करके बठिंडे आए सी। सो चंद गल्लां जिहड़ियां मैं उन्होंने साडे नाल साझियां कीतियां, असीं वक्त गुजारिया, मैं वही करूँगा। जो गल्लां कीतियां गईयां ने उन्होंने मैं दोहराऊंगा नहीं। एक दिन मैं उन्होंने पूछा, मैं बैठा सी उन्होंने कोई करे, मैं कहा सरदार जी थोड़ी ये दसो कि ट्रेड यूनियन के विच थोड़ी एंट्री किवें होई, तुसीं किवें इहनूं एडॉप्ट किया, थोड़ी लगन इत्थे किवें लगी।
कहते मेरे मास्टर सन गुरदेव सिंह। मैं 5वीं तक तो पढ़ाई भाई उत्ते की सी और 5वीं तो बाद 10वीं जी है मैं रामपुरा फूट की सी। तो जो मैं रेल च आया ट्रांसफर होकर बठिंडे तो जी प्रशासन लोको फोरमैन मेरी पहली मुलाकात हुई। मैं जोगिंदर तेन वो दसदा, मैं कहा जी दसो। कहता मैं आया बठिंडे अपॉइंटमेंट लेटर मैं दिता, ड्यूटी ज्वाइन की। मैं एक दौरा जगह है बतौर फायरमैन मैं लाया तो उत्ते लाल झंडा जरा सी लोको फोरमैन के दफ्तर के बाहर ऑल इंडिया लोको स्टाफ एसोसिएशन साडी जी सीपीआई नाल संबंधित सी, कांग्रेस पार्टी नाल संबंधित सी। ते कहते मैं भी उत्थे जाके खड़ गया। सो बोल के भाई हटिया एक कामरेड तो मैं उन्होंने क्या यार थोड़ा जा मौका मैनू भी दो। तो कहते मेरे कभी देख के ते हैं कहते कहते की बोलेगा काका। कहता जी महाराज माइक दोगे तो ही बोलूंगा। कहता आया कितों नवा ही लगता। कहता जी मैं टीकेडी तो आया ट्रांसफर हो गई मैं फायरमैन सी है। कहता अच्छा नहीं भाई है। कहते हाँ जी चलो। कहता भाई तू भी बोला मैं ना अनाउंस किया तो कहते मैं बोलने लग गया। बोलने लग गया मैं रेलवे दिया जड़िया औकड़ा सन जड़े असी मंगा मंगते सन मैं उठो 4-5 ही रखियां जिन्हें सी कि सानू जी रेलवे पास देती है वो उन्हीं की डेट पाती है जिन्हें छुट्टी सैंक्शन होती है। भाई बंदा बिहार यूपी हिमाचल राजस्थान कितने गया बीमार हो गया कोई घर का बीमार हो गया जो घर तो छुट्टी उथे वो कटता है तो फिर उन्होंने आने लगे बड़ी दिक्कत आती सी क्यों पास तो उन्हें देता सी जिन्हें थी डेट उसकी छुट्टी सैंक्शन सी। और कहता जोगिंदर गल यह है कि उस टाइम सानू ओवर टाइम ना मात्र मिलता सानू जो नाइट ड्यूटी करते सी नाइट ड्यूटी नहीं मिलती वह सानू अलाउंसेस नहीं मिलता नाइट अलाउंस नहीं मिलता सी टीए पे जाते सी कहता वो नहीं मिलता सी। तो कहता मैं उसे 5-7 नारे बुलाए इनकलाब के तो कहना मैं बोल के हटिया। जब फंक्शन खत्म हो गया तो उन्होंने फिर भेजा फोरमैन ने कहता वो छोटा जहा बोल के गया ना कहता ये कौन है। कहता जी नवा ही आया इतने कहता बुला के गया मेरे को। तो कहता मेरे को आया कहता जी थोड़ा सर फोरमैन साहब बुला रहे हैं। कहता कि उन्होंने क्या की गल होगी। कहते नहीं मेरे मैंने पता तुम जाके पूछ लो। कहता मैं गया शस्त्रीकाल की नमस्कार की मैं पूछा ही दसो मेरे घर सेवा। कहता यार तू नवा ही आया है तू ट्रांसफर हो गया। कहता ठीक है नहीं तो आया मैं। कहता अच्छा भाई मैं कहते हाँ जी। कहते तेरा नौकरी का डर नहीं तू प्रशासन के खिलाफ इन्ना खुल गया और इन्ना बोल रहा अरे तेरी नौकरी कितनी हुई है। कहता 2.5 साल हुई है। पर कहता मैं मेरा जो गुरु है उन्हें मैंने दसिया कि काका रेल च भर्ती होया तो फिर कर रही है कि अपनी ड्यूटी पूरी करे। कहता फोरमैन साहब ये तो तुम दिल्ली जाने हो तो दिल्ली डिवीजन होता सी भाई तुम टीए मिलता है। कहता नहीं सी। कहता नाइट लॉस ARP ज्वाइन करते हो तो तुम मिलता है। कहता नहीं सी। कहता छुट्टी जाने हो पास की डेट महीने 2 महीने की होती है। कहता नहीं सी। कहता थानू नहीं चाहिए। कहता चाहिए तो है जे कहता चाहिए तो कहता मैं तो थोड़ा सपोर्टर ही हाँ मैं तो थोड़ी वकालत ही कर रहा तो तुम साढ़े नाल लड़ते क्यों नहीं। कहता यार काका तेरी गल्लां सारियां ठीक है पर जो उतला प्रशासन है वो इन्होंने गलों नहीं समझता वो नहीं मानता इन्होंने गलों। पर कहता जो तक मैं इतने है तेन किसी गल की कोई दिक्कत आए प्रॉब्लम आए तो तू सीधा मेरे को आए मैं उन्हें जरूर सुनूंगा। और यह है सो भाई साहब कह रहे हैं कि थोड़ा लेकर गल्लां बहुत सारिया। राम सिंह जी सन 1971 में स्ट्राइक हुई 6 नंबर प्लेटफार्म पर गड्डी लेके खड़े से पता लग गया कि स्ट्राइक हो गई है। उत्थे उन्होंने डंकी हैंडल चक्या
वो बारियां हिला के स्टीम इंजन से ठंडा करके खड़ा करता। जो खड़ा करता तो जीआरपी आ गई, पुलिस आ गई। तुसी कहोगे कि उन्होंने 6 नंबर तो SS के ऑफिस तक जी दस्तार सी पग वो गिरन लगी, उन्होंने दस्तार फड़ के अपनी कश थले दवाई। एक हाथ में उन्होंने केस सीगे सरदार राम सिंह जी जो जोड़े साढ़े विचकार है फड़े हुए तो आ रहे थे। जोशी होंगे स्टेशन मास्टर कहते हो की करते पे हो? वो कहते जी महाराज अग कराती इंजन की। कहते थोड़े प्यो का इंजन है, सरकार का इंजन है, मंगा मनाउनिया ने। कहता ये इनकलाबी बंदे ने, कोई अपने वास्ते तो नहीं कर रहा है, ये तो थोड़े वास्ते कर्मचारियों वास्ते कर रहा है ना। तो जोशी जी ने फिर उन्होंने राम सिंह जी ने अंदर बुलाया, शीशा लग्या सी, पानी पिलाया। कहते जी तुम पहला तो अपनी पग बनो सजा के। पग बन के बाद जो जीआरपी ने कहा कि हम दसो की करना। कहते जी थाने जाना पैना, माड़ी लिखता पढ़ती करनी पैनी। सो गए वो और उथे उन्होंने सरदार जरूप सिंह जी गिल और प्रिंसीपल जगदीश ढाई जी स्पैशल नाम लिया कि वो आ गए थाने के विच, मेरी जमानत करवा के लै गए। सो मैं ज्यादा ना बोलूंगा, कहानी तो बहुत लंबी है और सच्चाई है जो इन्होंने किया है, क्योंकि उन्होंने रंगत जी सी, उन्होंने पैदाइश जी सी और मुलाजमान के हक च सी। दिन रात हो रिटायरमेंट तक भी रिटायर एसोसीएशन के वो प्रधान से। बहुत ही गल्लां बहुत चंगा करते। एक छोटी जी गल कह के मैं गल खत्म करूंगा। लास्ट जी साडी एक मीटिंग सी रिटायर की, तो उत्थे लास्ट में कहते यार मैं तुहानूं गाना सुनाऊंगा। तो उन्होंने जमला जट का एक गाना सुनाया। जो वापस असीं आन लगे कचहरियां दे विच मीटिंग सी, स्कूटर ते बैठन लगे तो मैं कहा जी तुसीं अज जमला जट तुहाडे अंदर कित्थों आ गया? कहता यार जलंधर अज मैनूं शौक ही आ गया, ये चल अज मैं कुछ सुना ही देवां। सो बहुत ही रंगीले, बहुत ही चंगे सुभाव के, मजदूरों के हक की खातर लड़ते सी। उन्होंने अपना जो सेल्फ इंटरस्ट कभी नहीं देखा। सो मैं उस विछड़ी हुई को अपनी दोनों यूनियन, नॉर्दर्न रेलवे मैन्स यूनियन, उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन, ऑल इंडिया लोकल स्टाफ एसोसिएशन, SC ST OBC सब के वालों रेलवे वालों मैं श्रद्धांजलि दी है वो अर्पित करता और वाहिगुरु के परमात्मा की बेनती करता कि उन्होंने अपने चरणों के विच वास दें और परिवार को, संगी साथियों, दोस्त मित्रों और मैनू भी भाना मनण का बल बख्शण। वाहिगुरु जी का खालसा और वाहिगुरु जी की फतेह। 83 साल का जीवन बहुत लंबा जीवन है। बहुत समा उन्होंने समाज में कटिया। बहुत सारिया घटनावां साझा यादां साडे बुलारियां नाल जुड़ियां ने। सारे बुलारे बहुत सियाणे ने। संखेप की बेनती मैं उन्होंने जरूर करांगा। शोक मते वो साडे कोल आए ने। सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन वेलफेयर एसोसीएशन वालों शोक मता आया। टीचर्स होम ट्रस्ट वालों शोक मता आया। मास्टर बाबू सिंह यादगारी भवन रामपुरा फूल वालों उन्होंने सारे अहदेदार इतने हाजिर ने, उन्होंने वालों शोक मता आया। भाई रूपा जिहड़ा कामरेड राम सिंह होरां दा जद्दी पिंड सी, उत्थों परिवार के रिश्तेदारों तो इलावा भी बहुत सारे साथी उत्थे हाजिर इतने हाजिर हुए ने, उन्होंने वालों भी शोक मता आया। डॉक्टर जसबीर सिंह हुंदल डायरैक्टर रीजनल सेंटर बठिंडा, डॉक्टर अमरीक सिंह एक्स सिविल सर्जन बठिंडा, सरदार बलजीत सिंह संदोहा DO एलीमेंटरी बठिंडा, सरदार रंजीत राणा कोआर्डीनेटर टीम पढ़ो पंजाब, डॉक्टर मनिंदर सिंह SMO सिविल अस्पताल बठिंडा, श्री प्रदीप गोला काउंसलर, श्री राज मेहरा काउंसलर, श्रीमती अमरजीत कौर कोटफत्ता साबका DO बठिंडा ते होर बहुत सारे साथियों के नाल सरदार सुखदीप सिंह पिंडर सीनियर एडवोकेट, सरदार गुरजंट सिंह कुत्तीवाल एक्स MLA, ये भी शख्सियत साडे विच हाजिर ने। कामरेड राम सिंह होरां दा
सरदार तजिंदर सिंह मिंडू खेड़ा अकाली आगू वो भी इत्थे हाजिर ने। अर्शी साहब दस रहे थे कि साबका मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल का भी इन्हों फोन आया, उन्होंने भी मैसेज शोक व्यक्त किया कामरेड राम सिंह होरां दी इस विछोड़े ते। कामरेड राम सिंह होरां नाल सरदार जगरूप सिंह गिल होरां दा बहुत नेड़ला साथ रहा है, परिवार का साथ रहा है। मैं गिल साहब को बेनती करांगा कि अपने उस रंगले साथियों को इत्थे शरधा दे फुल भेंट करन। सरदार जगरूप सिंह गिल। गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र गोद दे विच अज कामरेड राम सिंह जी के चले जाने तो बाद उन्होंने पुराने सारे साथी रिश्तेदार दोस्त मित्र इत्थे इकट्ठे हुए और उन्होंने दुख के सांझ पाने लई, उन्होंने दुख घट करने लई, क्योंकि अजिहे समय जो दुखग्रस्त परिवार के नाल दुख साझा किया जाता, दुख कुछ घटता है। खुशियों के समय खुशियां मनाया बढ़ जांदियां ने। कामरेड राम सिंह का मेरा उन्होंने नाल वाह 1979 तो भी पहला का सी और पूरी तरह असी एक दूजे को समझण दे विच 1979 की साडी पहला नगर कौंसल की चोण सी। कामरेड हरदेव सिंह हरशी हवेली और गुरसेवक सिंह उदों सैकटरी होंदे सन। कामरेड मक्खन सिंह CPI का बठिंडे दे विच बहुत बड़ा बोलबाला सी, पंजाब दे विच भी बोलबाला सी। जदों चोण आई मैनूं याद है कामरेड राम सिंह होरां ने, सुखलाल होरां ने, अर्शी होरां ने सानू उस लाइनों पार इलाके के सारे कैंडीडेटां नूं इकट्ठे किया, जिहदे हुकमचंद शर्मा, रामजीत बागला, मैं, कामरेड मक्खन सिंह, जगदीश सिंह कही, और उन्होंने सानू कहा कि सानू जिहड़ी चोण है ये लोगों की चोण बना के लड़नी चाहिए है और असी निशान बेशक साढ़े वक्-वक् सी, एक सांझी अपील उस इलाके के लोगों को की सी, जिहदे कामरेड राम सिंह का बहुत बड़ा योगदान सी। और उस इलाके के विचों लगभग असी 2 साथियों छड्ड के कामरेड बागड़ा जी और कई साहब थोड़ी वोट ते हारे सी। उस इलाके के विचों असी जित के बठिंडे की नगर कौंसल में शामिल हुए सी। कामरेड राम सिंह जो समाज दी गल्लां करते सी, सही तौर पर सचमुच वो सच्चे कामरेड सी जिहड़े हर धक्के के खिलाफ, हर जाति के खिलाफ रिस्क लैके भी खड़ा होने की जरूरत रखते सी। उन्होंने जिंदगी दे विच बहुत मन्ना मारिया। साधन संपन्न व्यक्ति या परिवार ने कोई तरक्की कर जाता, कोई अलोकारी गल नहीं होंदी, वो साधना के नाल तरक्की कर जाता है। पर कामरेड राम सिंह जिंदगी दियां उन्हां हालतां दे विचों, क्योंकि मैं भी पिंडां दे विच रहण वाला है, उन्हां हालतां दे विचों निकल के समाज दे विच जिथे उन्होंने आप बड़ी शान नाल अपनी जिंदगी की नौकरी की, उत्थे उन्होंने अपने परिवार को विद्या का चानन दे के तकरीबन उन्होंने भाई भी सारा परिवार और बच्चे और कामरेड अर्शी भी जिन्हों का कले साढ़े जिले बठिंडे नहीं पंजाब के विच ना है, उस परिवार के मैं बड़े सपुत्र कहा तो कोई अच कथनी नहीं। और उन्होंने अपने बच्चों को जिथे विद्या दी नाल नाल समाज के कामों के शामिल होने लई उन्होंने प्रेरित किया। भैन दलजीत ने मैनूं याद है, भावें कोई भी एजुकेशन आई होवे, भावें साडे इलाके की कोई समस्या होवे, भावें असीं इलाके के विकास के काम कीते होण जां किते उत्थे सानूं प्रशासन दे नाल लोहा लेना पिया, कामरेड राम सिंह उन्हां दा परिवार भैन होरी डट के साडे नाल खड़े। अज वो साडे विच नहीं रहे। जाण वाले व्यक्ति तो अज के दिन शिक्षा लेनी चाहिए है कि जिथे उन्होंने अपना जीवन अपने परिवार की परवरिश बड़ी वधिया की,
उत्थे समाज की सेवा भी बड़ी वधिया की। और सुरंगले सज्जन नूं जिन्हां दे नाल बड़ा लंबा समा असीं बिताया, जिन्हां तो बड़ियां सिक्ख्यावां लईआं, इत्थे समा नहीं सारियां गल्लां करन दा। मैं उन्हां दे चले जाण तो बाद जिथे परिवार दे नाल दुख साझा करदा है उन्होंने नतमस्तक हुंदा होया परमात्मा अगे असीं सारिआं ने अरदास कीती है। संगत दे विच कीती हुई अरदास कदे अजाई नहीं जाती। परमात्मा जरूर उन्होंने अपने चरणों में निवास बख्शेगा। और जो परिवार है पीड़ित परिवार, माँ प्यो चले जाने तो बाद सब ने चले जाना है, ये सानू सब नूं पता है, पर जी पीड़ा है वो याद रही है। उन्होंने सहन का मौका अपनी शक्ति देगा। इन्होंने शब्दों के नाल मैं संगत को आगे रहिंदा होया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। इत्थे हाज़र ने सरदार खुशबीर सिंह साबका डीओ, डॉक्टर राजेश बड़ियाल, सरदार स्वरनजीत सिंह धलेवा सीनियर एडवोकेट, बहुत सारे लेख इत्थे हाज़र ने, साहित्यकार हाज़र ने, डॉक्टर अजीतपाल समेत उन्होंने साथी बहुत लेखक भी इत्थे हाज़र ने। असीं उन्हां दा भी धन्नवाद करते हैं। उस तो इलावा कामरेड राम सिंह होरां दा जीवन एक कम्यूनिस्ट आगू वाला भी रहा है। जदों वो रेलवे 1964 की हड़ताल हिस्सा लेंदे ने ते 1978 की हड़ताल विच उन्हां नूं नौकरी तो टर्मीनेट किया जाता है, तो उसके पिछे जिहड़ी शक्ति उन्हां कोल सी वो सी एक विचारधारा, एक ख्याल, एक पार्टी जिहड़ी उन्हां नूं इन्हां समस्यावां नाल लड़न वास्ते मजबूत बल बख्शदी सी। भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी पंजाब के सहायक सकत्तर कामरेड जगजीत सिंह जोगा जी मैं बेनती करांगा कि वो भी अपने इस रंगले साथी नूं आके श्रद्धा के फुल भेंट करन। ये साडे अज दे श्रद्धांजलि समागम के आखिरी बुलारे होणगे। इन्हां तो बाद कामरेड हरदेव बख्शी बड़ा सारिआं दा धन्नवाद करनगे परिवार वालों कामरेड जोगा। पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी गोद दे विच जुड़ी हुई साध संगत जीओ, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। राम सिंह को जब असीं याद करते हैं तो असीं उन्हां दियां जो समाज नूं देना ने उन्हां करके उन्हां दा सन्मान है जिहड़ा समाज दे विच साडे दिलां दे अंदर वसिया होया। वो मजदूर मेहनत कश वर्ग है, जो सारा समुचा मेहनत कश वर्ग, चाहे मुलाजम है, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, दबिया कुचलिया समाज का वो हिस्सा उस विचारधारा को अपनाए हुए थे। कम्यूनिस्ट पार्टी के मुलाजम होते हुए भी वो गुप्त तरीके के नाम बदल के मैंबर रहे हमेशा। इतों सेध लैके इस विचारधारा तो सेध लैके वो रेलवे मुलाजमान दियां संघर्षां दे विच ते मजदूर वर्ग के संघर्षां दे विच मूललियां कतारां च रहे। मैनूं याद है 1974 की हड़ताल ते एक हड़ताल बिजली बोर्ड की हड़ताल। मेरे उदों वरंट सीगे, कॉमन भसीन साडे सैकटरी सी और पुलिस ने लगातार मेरा घर नीवा करता, छापे बार के तो असीं फैसला कर लिया कि जगजीत सिंह जोगा को गिरफ्तारी दे दी। तो राम सिंह होरां ने रेलवे के विच बहुत बड़ा हथ रखा। उस जलसे में मैं बोलदे हुए गिरफ्तारी देनी सी, पर राम सिंह होरां ने फैसला ही बदल दिता कि नहीं असीं गिरफ्तारी नहीं देनी, तो बोलदे साडी साल मार जानी है ना, साडा इंतजाम है असीं कढ़ के रह जाना। मैं हैरान रह गया, इंतजाम उन्हां दा सी। बोलदियां एंड किते तो बड़ा विचाले मैं छाल मारी, कट्ठ दे विच खड़े हो गए सारे, मेरी पग ला के मेरे सिर ते टोपी रख दी, मोटरसाइकिल ते जाके रेलवे दे विच मैनूं अंडरग्राउंड करता। सो इस तरह के वो साथी से काफ़ी लंबा समा उदों अंडरग्राउंड रखा गया। सो उन्होंने विचारधारा ये नहीं सी कि मोटे तौर पर मुलाजम होने करके मुलाजम वर्ग की एजुकेशन की अगवाई करते थे। वो सच्चे मनों ही, सच्चे मनों ही मेहनत कश लोगों की इज्जत करते थे। उन्होंने एक सबूत है, बीबी दलजीत उन्होंने बेटी है,
सो इस बेटी का रिश्ता एक कम्युनिस्ट पार्टी ने होल टाइमर नाल कीता, बहुत बड़ा जेरा चाहिए। होल टाइमर दो तरह के कारकुन है साडी कम्युनिस्ट पार्टी, एक जुज़बख्ती एक कुलबख्ती। जुज़बख्ती वो भी आपका कारोबार भी करता है, काम धंधा भी करता है, तो पार्टी का काम कुम भी माड़ा मोटा करी जाता वेले समय। कुलबख्ती हुआ जिन्हें सारी जिंदगी सारा टाइम ही कम्युनिस्ट पार्टी में दिता हुआ हृदयवासी सी कुलबख्ती। तो इनू अपना दामाद चुनिया, एक पढ़ी लिखी लड़की है, और ਉਹਦੇ वास्ते कम्युनिस्ट पार्टी ने कुलबख्ती ਨੂੰ चुनिया। और कुलबख्ती कम्युनिस्ट पार्टी का कोई बहुत अमीर बंदा नहीं होता, छोटी मोटी जी तनख्वाह माड़ी मोटी बेच देती है कम्युनिस्ट पार्टी, उन्होंने बड़ा गुजारा मुश्किल होता है। सो ये कुर्बानी ਉਹਦੇ मन के अंदर मजदूर वर्ग के प्रति, मजदूरों की विचारधारा प्रति, मेहनतकश लोगों की विचारधारा प्रति प्रतिबद्धता सी। इसे करके उन्होंने दामाद हृदयवासी ਨੂੰ चुनिया। चलो उस तो बाद वो पार्टी च MLA बने, होर बड़ा गाह तो चलो गाह रंग भाग लगे हुए हैं, पर उस वेले के जेरे की गल करता मैं। सो उन्होंने रेलवे विभाग के हुंडिया होया, हर बंदा कहना मेरी तरक्की हो, कर्मचारी होते हुए मेरी तरक्की हो, मैं अफसर बना। पर जोड़ा बंदा मुलाजमान की, मजदूरों की वर्ग की अगवाई करता है, हड़तालों की अगवाई करता है, संघर्ष की अगवाई करता है, उन्होंने पल्ले सस्पेंशन पैंदियां ने, टर्मीनेशन पैंदियां ने, जेलों पैंदियां ने, केस बनते हैं। और ये चिंता होती है कि फिर मेरा परिवार किमें पढ़ू। तो टर्मीनेट होने तक भी गए, टर्मीनेट भी कर देते गए, सस्पेंशन हो गई, बहुत सारिया कुर्बानियां देनिया पईयां, पर पिछे नहीं हटे। जो मुलाजमत तो रिटायर हो गए, उस तो बाद भी इसे विचारधारा पढ़ाए रहे, इसे विचारधारा ही काम करते रहे। सो उन्होंने कुर्बानियां याद करते गए। बीबी दलजीत को भी अपने विचारों का हानी बनाया, अपने विचारों की जी उन्होंने विचार से अंदर भी कुट कुट के भरे। जो मैं गिरफ्तार होया कचहरियों के मैं पता है दलजीत उदों अजे विआही नहीं सी, ते पिछे आके नारे लाउंदी हुई पिछे मेरे टेंपो के पिछे भजी आती सी। सो ये विचार दिते हुए इसलिए अपने बच्चों को। सो ये जो विचार है ये बड़े उच्चे सुच्चे लोकाई प्रदाए हुए, समाज में प्रदाए हुए विचार ने। इन्हें शब्दों के नाल मैं उन्होंने कुर्बानियों याद करता हुआ, उन्होंने जिंदगी की औखियाइयां याद करता हुआ, उन्होंने समाज प्रति सेवा याद करता हुआ, सारे परिवार के नाल दुख प्रगट करता हुआ परिवार के, उन्होंने शब्दों के फुल भेंट करता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वालों। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कामरेड राम सिंह होरां दी जिंदगी का एक मेन पक्ष उन्हों का रेलवे संघर्ष, रेलवे किया काम याद किया। 1974 की हड़ताल वेले जो बठिंडे के रेलवे स्टेशन से इंजणों की अग गिरा के इत्थे रेलवे का चक्का जाम किया गया, तो उन्होंने समय में कामरेड राम सिंह होरां नूं टर्मीनेट कर दिता गया सी। उन्होंने डराउण वास्ते, उन्होंने हंभाउण वास्ते, थड़काउण वास्ते उन्होंने नौजवान बेटी जो उदों अनमैरिड सी, कुआरी सी, भैन दलजीत नूं पुलिस ने गिरफ्तार किया। जदों पुलिस भैन जियां नूं अपने वैन जिप्सी चढ़ाउण लगी तो वो कहते भी मेरे हाथ ना लाओ, मैं बाजार च भी नारे मारदी जाके अपनी गिरफ्तारी लूँगी। 18 दिन की जी जेल यात्रा भी कामरेड राम सिंह होरां नूं डरा ते दबा नहीं सकी। उन्होंने जी समाज में बहुत बड़ी देन है, आने वालियां पीढ़ियां, उन्होंने परिवार दी पीढ़ियां या लोक पक्षी लोगों दी पीढ़ियां उन्होंने याद करदियां रहणगियां। परिवार वालों उन्होंने याद विच कुछ संस्थावां नूं आर्थिक सहायता दी गई है। इस तो पहला कि कामरेड जी तुहाडा सारा का धन्नवाद करना, मैं वो सहायता तुहाडे सामने पढ़नी चाहुंदा हां। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जी स्टेट कमेटी नूं 2000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मानसा ब्रांच नूं भी सहायता 2000 रुपये दी गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बठिंडा ब्रांच नूं भी 2000 रुपये की सहायता दी गई है। टीचर होम ट्रस्ट नूं, नवां जमाना अखबार नूं, पेंशनर एसोसीएशन रेलवे नूं
गुरुद्वारा सत्संग रेलवे नूं ते कुल हिंद किसान सभा नूं भी जिहड़ी आर्थिक सहायता दित्ती गई है। उस तो इलावा ये सारे संस्थावां नूं 2-2000 रुपये की सहायता दित्ती गई है। उस तो इलावा परसराम प्राइमरी स्कूल, प्रताप नगर प्राइमरी स्कूल अते रविदास गुरु रविदास गुरु घर भाई रूपा एक पक्के की आर्थिक सहायता दी गई है। हुण मैं बेनती करांगा कामड़ हरदेव अर्शी होरां नूं कि सारी संगत का धन्नवाद करन। कामड़ अर्शी कीमती सਮਾं कट के साडे दुख दे विच शरीक होण आए समाज के ਵੱਖ-ਵੱਖ वर्गां दीयां बड़ियां सत्कारत शख्सियतां, साडे परिवार के रिश्तेदार, साडे शुभ चिंतक, बहुत सारिया नामवर शख्सियत। मेरे को शब्द नहीं जिन्होंने शब्दों के नाल मैं थोड़ा धन्नवाद कर सका। असी जिहड़े अपने पिता जी कामड़ राम सिंह के सदीवी विछोड़े से बहुत ज़्यादा दुख के विच ग्रसे हुए सी, एक बड़े बड़े सदमे के विचों गुजर रहे सी। तुहाडा बहुत बड़ी गिनती के विच आउणा, आके साडे दुख के विच शरीक होना, साडे नाल आधा नारा मारना, ये सानू इसका थोड़े आने का बल मिले, हौसला मिले। असी दोनों परिवार सहोता परिवार के अर्शी परिवार ये महसूस करते हैं कि इस दुख की घड़ी असी कल्ले नहीं, दोनों परिवार समाज का बहुत बड़ा हिस्सा साडे दुख के विच शरीक है। क्योंकि कोविड करके असी भी संकोच किया कि किसी को चेचे तौर पर निजी तौर पर बेनती ना की जाए, कोई कार्ड ना वंडे जान, किसी को सोशल मीडिया के राही पता लग गया अपने तौर पर या पार्टी के कुछ साथियों को पता सी। असी बड़ा चाहते सी कि बड़ा सीमित तो सीमित एक इकट्ठ रखा जाए। और अज बठिंडे के विच सारा शहर ही पता नहीं किस घटना करके सारा शहर जाम है, आउण जाना बड़ा मुश्किल है, कई साथी जे पहुँच ही नहीं सके। पर इन्हां सारिया मुश्किलों के बावजूद भी जिस तरह वड्डी गिनती के विच तुसीं आए उचेचे तौर पर साडे नाल दुख प्रगट किया, ये असी दोनों परिवारों वालों मैं थोड़ा तह दिलों धन्नवादी हाँ। कामड़ राम सिंह जी एक संघर्षी मनुख सी। संघर्ष वह बचपन ही शुरू हो गया, जो 6 महीने की सी माँ का सिर तो साया उठ गया। उन्होंने सत्कारयोग ताई दान कौर ते ताया जी सरदार भजन सिंह ने अपने बच्चों को भी बढ़ के इन्हों की पालन पोषण की, पढ़ाया, प्रवान चढ़ाया। और जोड़ा इन्हों का असली पिता जी का जोड़ा बाकी परिवार, इस गल का तो बड़ा मान है सारे भाई रूपे कि जे कोई परिवार सारे का सारा पढ़िया और सारे का सारा सर्वसां दे विच है तो एक कामड़ राम सिंह सहोता का ते इन्हां दा परिवार सी, जिहदे विचों वख-वख महकमिਆਂ विच भी गए। 2 भरा डॉक्टर भी बने, एक भरा बतौर सिविल सर्जन भी सेवावां निभाईआं और वहाँ रिश्तेदार भी सारे पढ़े लिखे। उन्होंने भोगिया जी सरदार छत्तर सिंह जी, उन्होंने भैन हरबंस कौर, उन्होंने भरा जिहड़े अज मौजूद ने साडे दुख दे विच लगातार। जदों असीं हस्पताल दे विच बड़े चिंतित सी कि कोई रिकवरी नहीं हो रही, उदों साडे दुख दे विच आके खड़े भरपूर सिंह जी, उन्होंने पत्नी बीबी प्रकाश कौर जी, उन्होंने मैं धन्नवादी हाँ। मैं धन्नवादी हाँ अपने रिश्ते के तौर पर जोड़े मेरे दोनों साले नवनीत सिंह ते लवतेज सिंह, दिन रात कोई खर्चे की परवाह नहीं की। साडा एक फैसला सी दोनों परिवारों का कि असीं उन्होंने तकलीफ नहीं होने देनी, जिन्ना मर्जी खर्च हो जाए उन्होंने सौखे रखना है। अगर किसी तरह साढ़े को वापस आके साड़ी खुशकिस्मती होएगी, लेकिन जो चले भी जाते हैं तो बिना तकलीफ के जाना। सो लगातार मेरा ख्याल है भी 20 के प्लस कोई 25-30 दिन लगातार असीं उन्होंने हॉस्पिटल के रखिया। और उन्होंने जिहड़ियां नूहां ने बीबी गुरमेल कौर, बीबी मनजिंदर कौर, जिन्नी वध तो वध सेवा कर सकदियां सी, सेवा पहला भी करदियां सी और जो पीड़ित सी उदों भी बहुत ज़्यादा सेवा की। उन्होंने बाकी भी जिन्ने परिवार के मैंबर है, साडा रिश्ता प्यो पुत्त वाला ही है, जवाई के अपना सहुरे का रिश्ता प्यो पुत्त रूपी है। और सही मैंने जंगली तौर पर मेरे वास्ते एक पिता रूपी सी। मैनूं पता जो असीं अपना दोनों ने वखरा जीवन आरंभ किया, बहुत सारिया मुश्किलां सी, पर सानूं मुश्किलों का पता नहीं लगन दिता। पता नहीं कदों किहड़े वेले आके वो साड़ी किसी ना किसी रूप के मदद करदे रहे।
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਕੱਟੇ, ਚਲੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਲਜੀਤ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਵੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਮਿਸਿਸ ਅਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਦੋਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਟੈਕਸੀਅਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਗਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਘਾਟ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟਕਦੀ ਰਹੂਗੀ क्योंकि निजी तौर पर बहुत महसूस हो रहा है। मैं थोड़ा जिहा भावुक भी हो रहा, मैं थोड़ा ज़्यादा गया नहीं जा रहा, पर लेकिन वधिया उम्र भोग के गए, संघर्षी जीवन भोग के गए और जो देखा कि एक नौजवान लड़की गिरफ्तार हो गई, बिल्कुल उन्होंने मतलब मन से कोई डर कोई दहशत क्यों हो गई, माड़ी गल हो गई कि इस तरह कोई कमजोरी दिखा जाना, सवाल ही नहीं पैदा होता। और बड़ी दृढ़ता के नाल अंडरग्राउंड से अंडरग्राउंड रह के अपनी रेल स्ट्राइक की अगुवाई करते रहे, पर यह कोई परवाह नहीं की। तो इस तरह का जो दृढ़ इरादे का मनुख का जाना कुदरती है, परिवार लिए समाज लिए बड़ा दुखदाई होता है। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ माफ़ी चाहना, हो सकता है कि किसी सरकार शख्सियत का नाम लैन तो संबोधन करने तो शायद किसी तरह की कोई कमी पेशी रही हुए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहना। नाल साडी परिवार वालों ये बेनती है कि लंगर तैयार है, चाह प्रशादे का जिस किसी को भी लोड़ है या जिन्होंने नहीं छकिया वो साड़ी हथ बन के बेनती है अपनी इच्छा अनुसार वो जरूर लैके जान। सो फिर एक बार थोड़ा सारे का इतने आने सारे दुख के शरीक होने मैं दोनों परिवारों वालों अर्शी परिवार सहोता परिवार बहुत ही ज़्यादा तह दिलों थोड़ा धन्यवाद करना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।